لیکچر نمبر 7 کو دیکھیں گے. کمپیوٹر فنڈامنٹل کا لیکچر نمبر 7. لیکچر 7 میں زیادہ تر ڈسکشن اباؤٹ ڈیٹا ریپرزنٹیشن ہوئی ہے, اور ڈیٹا ریپرزنٹیشن کا ہم نے کلاس میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے, انفارمیشن کیا چیز ہوتی ہے. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس بیسیکلی را فیکٹس یا را مٹیریل ہوتا ہے, جس کو ہم جب پروسیس کرتے ہیں تو وہ انفارمیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو پھر ہم یہاں دیکھیں گے کہ ڈیٹا کو کمپیوٹر میں کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, کیسے پروسیس کیا جاتا ہے, اور پروسیسنگ اسپیڈ کن چیزوں سے بڑھ سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے, اور ادر ڈیوائسز کو کیسے ہم پروسیسر پاور جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آج کے سیکشن میں کور کریں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ڈیٹا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیٹا بیسیکلی را فیکٹس ہے, جس کو کمپیوٹر جس پہ کام کرتا ہے, جس را ڈیٹا پہ کام کرتا ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے, اور اس کو یوزفل ڈیٹا کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ڈیٹا جو کمپیوٹر جس لینگویج میں سمجھتے ہیں وہ بائنری ہے. ہم نے کلاس میں ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا بائنری نمبر, اس کے ساتھ ہم نے آکٹل نمبر سسٹم پڑھا تھا, ہم نے ہیگزا ڈیسیمل پڑھا تھا, ڈیسیمل پڑھا تھا. پھر ہم نے ایک ٹاسک کیا تھا جس میں ہم اپنا خود نمبر سسٹم بنا سکتے تھے, اور ہم نے اس تمام پیرامیٹرز دیکھے تھے جو ایک نمبر سسٹم بناتے وقت یوز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بائنری نمبر سسٹم. تو کمپیوٹر بیسیکلی جو ہم نے دیکھا تھا کہ اسے ایک الیکٹرانک کمپوننٹس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ٹرانزسٹر سے بنا ہوا ہوتا ہے, اور الیکٹرانک کمپوننٹس سے بنا ہوتا ہے, اور اس میں سے ایک ٹرانزسٹر بھی ہے. تو ٹرانزسٹر بیسیکلی اس میں 2 اسٹیٹس ہوتے ہیں جس میں وہ کام کرتے ہیں, یا سوئچز جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اس میں آن یا آف ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, جو بھی ہم کمپیوٹر میں سینٹینس لکھتے ہیں یا جو بھی ہم ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ اسے کنورٹ کر دیتا ہے 1-0 فارمیٹ میں, اور پھر اس میں پروسیسنگ کمپیوٹر کو کرنا پڑتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جس ٹائپ آف انفارمیشن آ رہا ہے, ڈیٹا مل رہا ہے کمپیوٹر کو, وہ را فیکٹس ان دا فارم آف ٹیکسٹ ہو سکتا ہے, وہ ان دا فارم آف ڈیسیمل نمبر ہو سکتا ہے. تو ان دا اینڈ ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے بائنری نمبر سسٹم. تو آپ کو پتہ ہے کہ بائنری نمبر سسٹم کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے. آپ ڈویژن میتھڈ آپ لوگوں نے کلاس میں دیکھا تھا. تو یہ ایک بیس 10 اور بیس 2 جو ہے بائنری نمبر سسٹم, بیس 10 ہم نے ڈیسیمل نمبر سسٹم کو کس طرح کنورٹ کیا ہے وہ آپ لوگ کافی ڈیٹیل سے کلاس میں کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سنگل ڈیجٹ ہے, یہ 0 یا 1, اس کو ہم بٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان دا فارم آف 0 یا 1 ہو سکتا ہے. اور جب گروپ آف 8 بٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بائٹ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس 4 بٹ جو ہوتا ہے وہ نیبل ہوتا ہے, اور 32 بٹ جو ہوتا ہے وہ ورلڈ سائز ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس لیٹ سپوز ایک بٹ ہے تو یا 1 یا 0 ہو سکتا ہے. اگر 8 بٹ ہے 1 بائٹ ہے تو ہم 256 ڈفرینٹ نمبرز ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ہے بٹ بائٹس کی ریپرزنٹیشن. یہ ایک فارمیٹ گیون ہے کہ اگر آن ہے تو 1 ہے, آف ہے تو 0 ہے, اور اگر آپ ان سوئچز کو لیٹ سپوز 1 جہاں جہاں ہے وہ سوئچ آن ہے, اور جہاں جہاں 0 ہے وہ سوئچ آف ہے. یہ دیکھیں, تھرڈ سوئچ اگر پہلے 1 تھا آن تھا, اس سے آف ہم نے کیا تو 0 ہو گیا. تو اسی پہلے اس کا میننگ کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہے کہ ڈفرینٹ بٹس کی جو آن یا آف کی جو پوزیشن ہے وہ بیسیکلی ہمیں کچھ انفارمیشن یا ڈیٹا دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ میکسیمم کہاں 00008 بٹ سے اسٹارٹ ہو کے 81 تک یہ میکسیمم, اور یہ اس کی رینج ہے. تو یہ ٹوٹل اگر ہم نمبر دیکھیں تو یہ 256 نمبرز بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ویریشن ہمارے پاس 256. ٹھیک ہے, 000 سے لے کے اور 111 111 11, یہ 8 0 سے لے کے 8 1 تک. ٹھیک, اور پھر ادر فارمیٹس بھی ہیں جس میں یہ ایک ایکسٹینڈیڈ بائنری جو فارمیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, آسکی ہے, امریکن اسٹینڈرڈ
कोड फॉर इंफॉर्मेशन जो है आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास ASCII है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो हमें रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक हम डेटा लेते हैं। जैसे ये ASCII जो है ये भी 8 बिट में रिप्रेजेंट होता है। इसमें हम जो जीरोस को इस जो स्पेसिफिक नंबर है ये गिवन है 1 के लिए जो है, जैसे ए जो है कैपिटल, ये अगर ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ये डेसिमल 65 है, बी 66, तो ये स्मॉल ए जो होता है वो आई थिंक 97 से स्टार्ट होता है। तो ये डिफरेंट आपके पास ASCII टेक्स्ट ये जो फॉर्मेट है उसके आपके पास बाइनरी या हेक्साडेसिमल में नंबर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह होता है। अच्छा, प्रोसेसिंग अब देखते हैं। हमने ये देखा कि डेटा किस तरह था, बाइनरी है या ASCII है या हेक्साडेसिमल है या जिस फॉर्मेट में भी है, हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया और अब वो मिला है प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर में आपका हमने डिस्कस किया था कंट्रोल यूनिट होता है जो ओवरऑल प्रोसेसिंग करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं जो ऑपरेशंस करते हैं, मशीन साइकिल्स होते हैं जितने टाइम में एक आपके पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसे मशीन साइकिल। फिर आपके पास जो मेमोरी रैम है, रोम है कि जो डेटा सेव कर रहा है, फिर रैम की टाइप्स क्या है तो वो हम अभी आगे देखेंगे। आपके पास प्रोसेसर क्या है, बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो बेसिकली प्रोसेसिंग जो होती है यहाँ होती है और इसमें आपके डेटा आता है वो प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं आपके पास रैम है, मदरबोर्ड पे आपके पास प्रोसेसर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। उस प्रोसेसर में आपके पास ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो मेन पार्ट जो है वो ALU और कंट्रोल यूनिट होते हैं और इसके साथ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि वो आपको डायरेक्ट करते हैं द फ्लो ऑफ डेटा पे, या आपके पास समझाता है कि डेटा ने कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, अवेलेबल है या नहीं है, ये तमाम इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट जो CPU में देखें आप, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट कनेक्ट आउटपुट डिवाइसेस के बाहर से डेटा आ रहा है, अगर रैम से आना डेटा है तो वो भी कंट्रोल यूनिट कनेक्ट करेगा, अगर कोई इनपुट डेटा आ रहा है वो भी। तो कंट्रोल यूनिट साथ तमाम मैनेजमेंट वगैरह का काम कंट्रोल यूनिट का है, ठीक है। फिर अर्थमेटिक लॉजिक बेसिक जो ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये इस तरह के ऑपरेशन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कोई पावर हम ले रहे हैं। ये फिर मशीन साइकिल है कि आपके पास जो स्टेप्स फॉलो करते हैं CPU, ठीक है ना, उसको हम मशीन साइकिल या कहते हैं फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, जो एक इंस्ट्रक्शन में कितने मशीन साइकिल होते हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से वो स्टेप्स फॉलो करें। जैसे सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन जो होता है जो हमारे पास आती है उसको हम फेच करते हैं कि इंस्ट्रक्शन है क्या, फिर हम उसको डिकोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर प्रोसेस होते हैं। तो ये स्टेप्स हैं, ठीक है ना, इनको मशीन साइकिल और ओवरऑल आपके पास एक इंस्ट्रक्शन के साइकिल्स होते हैं। मेन पार्ट जो हैं वो है आपके पास फैचिंग है, डिकोडिंग है, एग्जीक्यूशन है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर आपके पास डेटा पड़ा कहाँ है, आपके पास डेटा आपके पास रैम में होता है, रैम आपके पास वोलेटाइल मेमोरी है, रोम जो हमने डिस्कस किया नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। फिर हमारे पास ये डेटा CPU में जहाँ से दिया जाए वो आपके पास रैम से आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रैम्स की दो टाइप्स है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम जो होते हैं ये ज़्यादातर कैपेसिटर से बने हुए होते हैं और ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रिसिटी अगर ना मिले तो ये यूज़ कर लेते हैं डेटा। डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम जो है आपके पास वो ज़्यादातर ट्रांजिस्टर से बने होते हैं और ये आपके पास इनको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये आपके पास फैक्टर इफेक्टिंग जो प्रोसेसिंग स्पीड, आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर मोस्ट फास्टेस्ट सेविंग, आप स्पेस कह सकते हैं या मेमोरी कह सकते हैं, लेकिन हम इससे रजिस्टर्स को हम रजिस्टर्स भी कहते हैं, ये प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद रैम होते हैं जिसे हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है, जितना रैम ज़्यादा होगी प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी, जितना आप रजिस्टर ज़्यादा होंगे प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी, लेकिन ये कॉस्ट भी सिस्टम के इफेक्ट करेगा। सिस्टम क्लॉक जो है, कितनी क्लॉक आपके पास
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इतना कम टाइम में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, बस साइज़ जितना बड़ा होगा, कैशे मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी तो ये आपके पास प्रोसेसिंग स्पीड इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इनको ये थोड़ा सा इनके बारे में ये गिवन है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लेते रैम के बारे में। ठीक है, अवेलेबल मोर रैम मोर आपके पास बेटर परफॉर्मेंस सिस्टम क्लॉक जो है, फिर ये आप देखिए बस डेटा बस जो है। ठीक है, ये देखिए, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, कैशे मेमोरी आपके पास, ये इसलिए मैं जो नई चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ और जो हम क्लास में कर चुके हैं वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज़ें पता है। कैशे मेमोरी हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, L1 जो आपके पास प्रोसेसर के बहुत करीब होती है, फिर L2 होती है, फिर L3 होती है, जो सबसे फास्टेस्ट होती है वो लेवल 1 या L1 कैशे होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू L2 और L3। ठीक है, extending the processing power to other dual port extensions or ports, extending the processing power जो अच्छा हमारे पास इसी तरह आप देख रहे होंगे कि USB पोर्ट्स वगैरह होते हैं एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए, फीचर्स को बढ़ाने के लिए। इसके पास हमारे पास एक सीरियल पोर्ट होता है, आपके पास एक पैरेलल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट में 1 बाइट एट ए टाइम ट्रांसमिशन, सीरियल पोर्ट में आपके पास 1 बिट एट ए टाइम ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये आपके इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ट्रांसमिशन होती है सीरियल पोर्ट में, जबकि पैरेलल पोर्ट में तमाम डेटा एट ए टाइम फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो पैरेलल पोर्ट फास्टर है एज कम्पेयर टू सीरियल पोर्ट ट्रांसमिशन। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देखिए। ये था आपके पास लेसन नंबर 7। थैंक यू।